جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ جانور کا گوشت غریبوں میں کتنا دینا چاہیے؟ بہتر ہے کہ 1/3 گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کر لیں، لیکن اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ پورے سال آپ کے لیے گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے، تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ اپنی فیملی کو پھر ترجیح دینا سب سے پہلے ہے۔ بعض لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سال میں ایک دفعہ ان کو قربانی کی نیت سے پھر انہوں نے جانور قربان کر لیا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو گوشت کھلائیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ مالدار ہیں اور گوشت پورے سال آپ کھاتے رہتے ہیں، تو کچھ گوشت تو بہرحال آپ خود کھائیں، تاکہ اللہ کی ضیافت سے اعراض لازم نہ آئے، اللہ کی ضیافت میں آپ شریک ہو جائیں۔ لیکن 1/3 گوشت پھر بہتر ہے کہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے مدد۔ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، چاہے پیغمبر ہو، فرشتے ہو، غوث اعظم ہو، غوث پاک ہو، بزرگ ہو، بابے ہو، یا کوئی بت ہو، جن کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، جتنے عاجز کمزور تم اتنے ہی وہ، تو کیوں اپنے جیسوں کو پکار رہے ہو بھائی؟ یہی تو آیتیں تھیں جو مشرکین مکہ جو بت پرست تھے وہ ہل جاتے تھے اور نبی کو قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی کہ ہمارے بتوں کو تو بالکل کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ عباد امثالکم، یہ سب تمہارے جیسے ہیں۔ انسان اپنے جیسوں سے، اپنے سے طاقتور سے مدد مانگتا ہے بھائی، جتنے محتاج تم اتنے ہی محتاج یہ بھی ہیں۔ فدعوہم، اللہ کہتے ہیں چلو ٹرائی کر لو، پکار لو ان کو۔ فلیستجیبوا لکم، ان کو چاہیے رپلائی میں جواب دیں۔ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یہ بت، یہ قبروں میں پڑے ہوئے مردے، چاہے بزرگ کیوں، اور یہ عامل تو میں نے خود لگا دیا ہے، اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن عاملوں کو بھی لوگوں نے اصل میں معبود ہی بنا لیا ہے، اس لیے میں اس کا لاحق ہوں، کیونکہ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے لا لگاؤ گے تو پھر حشر تمہارا یہی ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ولا انفسہم ینصرون، یہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ سانگ بھر کے نہیں دے سکتے، گناہ ہے نہیں، بہت تہجد کا ثواب ہے۔ چپل پہن کر غسل کرنا کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، چپل کا بھی غسل ہو جائے گا۔ کیا آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں بھائی، اگر آپ بہت ڈراؤنے ہیں تو شاید آئینہ ٹوٹ جائے۔ روزے میں احتلام ہو جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، آپ کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، رشتہ تھا ہی نہیں تو ٹوٹا کہاں؟ یہ گدھے گھوڑے والا رشتہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے، یہ وہ رشتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ہاں، نشے تو سارے حرام ہے میرے بھائی، سگریٹ وغیرہ یہ نشہ نہیں ہے۔ نشہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پینے کے بعد دماغ آؤٹ ہو جائے، تو سگریٹ پینے کے بعد تو سیٹ ہو جاتا ہے دماغ۔ اب بہویں بھی آج کل مارکیٹ میں ایسے آ رہی ہیں جن کو روٹی پکانا کھانا بہت طبیعت سے آتا ہے، ان کو پکانا بالکل بھی بولو نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھ سکتی ہوں، آپ بڑے بیٹے کا نام محمد طوفان رکھیں، چھوٹے والے کا نام محمد سیلاب رکھیں، اور تیسرے نمبر پہ جو بیٹا ہوگا اس کا نام زلزلہ خان رکھیں، اور چوتھے نمبر پہ جو ہوگا اس کا نام تباہی، اور پانچویں والے کا قیامت۔ ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم۔ ابھی ایک صاحب کا کلپ آیا، ایک تو میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا دلیل سے جواب۔ اصل میں جو بھی کلپ کرتا ہوں وہ کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں، وہ بڑے نا یوں کر رہے ہیں، اوہو آج تک ہم ادھر غلط پڑھتے رہے، کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، صبح کا بھولا شام کو آ جائے۔ جو احناف جس طرح سے وطر پڑھتے ہیں نا اس پہ یوں کیا ہے، یہ ایکٹنگ ہے اور کچھ۔ کبھی بھی علمی مسائل اس اسٹائل میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جو اس اسٹائل میں علمی مسائل بیان کر رہا ہے پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ تو جہالت کا دور ہے یہ۔ تو وہ اسٹائل ایسے مارا ایک بندے نے نا یوں، اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وطر پڑھتے رہے، حدیث میں تو اس کے خلاف ہے، اس طرح تو ہوتی نہیں ہے نماز۔ حدیث میں تو آتا ہے وطر کو مغرب کے مشابہ، مغرب کی طرح مت پڑھو۔ اوہو مغرب میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ ہوتا ہے اور وطر میں 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتوں کے بعد قادہ نہیں کرتے۔ آگے سب پھینکنا شروع کیا ہے۔ مشورہ میرا یہ ہے کہ جو عورت نہیں رہنا چاہتی اس کو چھوڑ دینے میں ہی عافیت، سمجھتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو۔ غیرت مند آدمی کہتا ہے جو بیوی وفا کرے گی اس کو جان بھی لٹائیں گے اس کے اوپر۔ مرد دیکھو عورت سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کو پہل عورت کی طرف سے چاہیے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ غیرت مند آدمی کہتا ہے پہل بیوی کرے گی، جواب میں اس کو محبت 10 گنا زیادہ ملی۔ پہل یہاں سے ہو یہ پھر آپ آدمی ہونے کی علامت نہیں، سمجھتے ہو؟ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ بہت زیادہ خواتین کے حقوق قائل تھے، لیکن کہتے جو عورت نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، پھر مرد کی مردانگی ہے کہ بھائی ہم محبت جب کریں گے جب پہلے تمہیں کرنی پڑے گی، پھر ہم جان بھی دے دیں گے،
लेकिन अगर उधर से ही उसको पसंद ही वसीम है तो जा भाई, तू जा, तू गफ्फार से शादी कर, तू वसीम से शादी कर। इंडिया में कार्रवाई हुई है और मासूम लोगों की जानें गई हैं, जिस पर हम भरपूर एहतजाज करते हैं कि बिल्कुल गलत हुआ है। ये जिसने भी किया है बदतरीन जुल्म किया है, मासूम लोगों की जानें लेने का किसी को भी हक नहीं है। वो सयाह थे जो कश्मीर में घूमने के लिए आए हुए थे, उनका कत्ल किसी भी तरह से हलाल नहीं है। जिसने भी किया है ये जुल्म है, जिसके खिलाफ जितनी आवाज उठाई जाए कम है। लेकिन इंडिया में जब जुल्म होता है हम उसको जुल्म कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी जुल्म कहती है, हमारा मीडिया भी जुल्म कहता है। यही जुल्म जब पाकिस्तान में होता है तो इंडिया का मीडिया उसको जुल्म नहीं कहता, बल्कि उसमें भक्तियां कसता है, मजाक उड़ाता है और उसके ऊपर मजम्मती बयान नहीं देता। वो जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है जनाब। क्या कहते हैं? गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालो, नमाज और सब्र से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है? जवाब दीजिए ना। सब्र खुदा है? नहीं। तो जब नमाज और सब्र से मदद मांगने का रब कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। पीरो मुर्शिद के पहले ये देख लिया करो कि ये सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं है। उनके रोने धोने पर उनकी बार बार बस ये बातें कि इश्क मुस्तफ़ा और नबी की याद और पहले अकीदा पूछो, हजरत आप क्या अकीदा क्या है आपका? समझ में नहीं आ रही बात? और साफ सुथरा अकीदा पहले वो बयान करवाओ अपने शेख साहब से, जो भी पीरो मुर्शिद बनाए रहे हो ना, जिसको हजरत जी बहुत पहुंचे हुए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछो। तो अकीदत की आंखें अंधी आंखों से मत देखो मेरे भाई, अकायद पे कंप्रोमाइज मत करो। देखो इस्लाम में सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले क्या है? अमाल में नमाज है। कोई बुजुर्ग नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो उससे पूछो भाई वजह बताओ क्यों नहीं। जाहिरी जिंदा से भी मांगी जा सकती है, दुनिया से जो रुखसत हो चुके औलिया किराम अंबिया किराम उनसे भी मांगी जा सकती है मदद। तो एक ने पूछा था कि क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना शरअन जायज है या नहीं है? देखें बिल्कुल जायज है। तो अपने पीरो मुर्शिद के पहले ये देख लिया करो कि ये सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं है। उनके रोने धोने पर उनकी बार बार बस ये बातें कि इश्क मुस्तफ़ा और नबी की याद और पहले अकीदा पूछो, हजरत आप क्या अकीदा क्या है आपका? समझ में नहीं आ रही बात? और साफ सुथरा अकीदा पहले वो बयान करवाओ अपने शेख साहब से, जो भी पीरो मुर्शिद बनाए रहे हो ना, जिसको हजरत जी बहुत पहुंचे हुए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछो। तो अकीदत की आंखें अंधी आंखों से मत देखो मेरे भाई, अकायद पे कंप्रोमाइज मत करो। देखो इस्लाम में सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले क्या है? अमाल में नमाज है। कोई बुजुर्ग नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो उससे पूछो भाई वजह बताओ क्यों नहीं। मेरे बिगड़ावत सवार दो मेरे ख्वाजा, मुझको नवाज दो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, क्योंकि सारी नेकियों पे पानी फिर जाएगा अगर शिर्क करके आए। धत्कार के मलामत ज़दा बना के तुझे जहन्नम में फेंकूंगा मैं, सारी तेरी नेकियों को बर्बाद करूंगा। मेरे साथ किसी को शरीक किया, अल्लाह गैरत वाला है, वो शिरकत बर्दाश्त नहीं करता। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह से मदद मांगना शिर्क, मौला अली से मदद मांगना शिर्क, ये बातें तुम्हें मालूम है, अल्लाह को क्यों नहीं पता? सिर्फ इसी एक बात का जवाब दे दें कि अगर गैर अल्लाह से मदद मांगना शिर्क है तो अल्लाह ने मुसलमानों को हुक्म क्यों दिया कि दीन की खिदमत करें, दीन की मदद करें? तो अगर आप पैगंबर को मदद के लिए पुकारते हैं और आपका ख्याल ये है कि अल्लाह ने नबी को खुद से इख्तियारात दे दिए हैं, नबी जब चाहे जिसकी चाहे मदद कर सकते हैं, तो अल्लाह ने कहा मैंने कब कहा है कि मैंने इनको इख्तियारात दिए हैं? ये भी अगर कुफर नहीं है तो फिर बचा क्या है इस्लाम में? तो अल्लाह बार बार ये कह रहे हैं मैंने अपने साथ किसी को शरीक नहीं किया। दुआ में, पुकार में। क्या इंसान में खिंजीर का गुर्दा लगा सकते हैं? अमेरिका में खिंजीर का गुर्दा इंसान को लगाने का कामयाब तजुर्बा किया गया है। क्या खिंजीर का गुर्दा इंसान को लगाया जा सकता है? इस बारे में शरई रहनुमाई फरमा दें। तनवीर कुरैशी, ओस्लो से। मुझे नहीं पता अमेरिका में वाकई कामयाब तजर्बा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन जान बचाने के लिए जब बिल्कुल इंसान मर रहा हो और यकीन हो के मर जाएगा तो अल्लाह ताला ने खिंजीर का गोश्त खाने की, बक़दर ज़रूरत गोश्त खाने की इजाज़त दी है। तो अगर माहिर डॉक्टर कह दें कि इसके गुर्दे का इलाज मुमकिन ही नहीं है और इसमें न गधे का गुर्दा लग सकता है, न घोड़े का गुर्दा लग सकता है, ना कुत्ते का लग सकता है, ना बिल्ली का लग सकता है, सिर्फ खिंजीर ही का लगेगा, तो अगर डॉक्टर माहिर कह दें और गालिब गुमान हो मरीज को कि डॉक्टर सही कह रहे हैं तो फिर जान बचाने के लिए लगाने की गुंजाइश होगी। निकाह से याद आया, अभी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस थी ना, उन्होंने सना खान तौबा ताइब की, क्योंकि वो राब्ते में हैं तो इसलिए अपडेट मिलती रहती है। उन्होंने शादी की है मुफ्ती अनस साहब से ठीक, तो वो दारुल देवबंद से फारिग हैं, तो मुफ्ती अनस साहब भी मेरे से राब्ते में हैं, तो दोनों ने अपनी तस्वीर भेजी, तो मैंने कहा ये इस कायनात में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा किसी एक्ट्रेस की शादी हो रही है किसी हजरत मुफ्ती साहब से। ठीक हो गया, मौलाना साहब बहुत खुश होंगे।
मौलाना साहब कहेंगे अल्लाह ने इस्लाम पर चलने का बदला मुझे दुनिया में ही दे दिया, आखिरत में हूर की जरूरत नहीं भी मिली तो कोई टेंशन नहीं है। मुफ्ती साहब जो हैं उनको उनके नेकियों का बदला अल्लाह ने दुनिया में दे दिया। अभी देखो सऊदी अरब में एक खबर आई है कि 90 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये पोस्ट चली है, उस पर लोग बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। इसका मतलब भाई दीनदारी में कोई तो खास चीज है कि यार कि 90 साल में आप क्या कर रहे हो, 18 साल की लड़की से आप में शादी का जज्बा है। तो ये दीन, मजहब, नजर की हिफाजत, ये पायदार लज्जतों का जरिया है। और ये जो वक्ती तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ा बढ़ा के जो करते हो ना जो काम, ये वक्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीजें आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रही हैं और आपकी खोपड़ी को भी डैमेज कर रही हैं। आजकल ठरकियों को समझा जा रहा है कि ये बड़े पावरफुल हैं कि कहीं ब्रेकें इनकी फेल हो गई हैं। वक्ती तौर पे ठरक का पैदा हो जाना, ये तो जो जितने गुनाह करता है उसकी ठरक बढ़ती है। वो ठरक और चीज है मेरे भाई, और ताकत और कुव्वत एक अलग चीज है। गर्लफ्रेंड में और गधी घोड़ी में कोई फर्क बोलो नहीं। बॉयफ्रेंड गधा है और गर्लफ्रेंड क्या है, गधी है। क्योंकि गधे और गधी का भी फिजिकल रिलेशन होता है, उनकी आपस में शादी। अबे कभी सुना है किसी गधे का निकाह किसी गधी के साथ? भाई नस्ल बढ़ानी है, उन्होंने दोनों का दिल चाह रहा है मिलाप का, तो उन्होंने कहा चलो जाके शादी कर लेते हैं। कभी सुना? नहीं भाई, कुत्ते और कुतिया की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें होता है। घोड़े और घोड़ी की शादी नहीं होती, रिलेशन उनमें बोलो ना होता है। तो इसी तरह याद रखो, जो इंसान शादी करके औरत से मिलाप करता है वो इंसान है, पैगंबरों के तरीके पर है। और जो विदाउट मैरिज किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बना के रिलेशन रखता है तो वो लड़की कुतिया है। और ये लड़का माजरत के साथ क्या है भाई, मुझे गालियां देना अच्छा नहीं लग रहा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के, मेरी नजर में नहीं है, ये किसकी नजर में है? अल्लाह की नजर में। वो लड़की गधी है और ये क्या है, गधा है। बेशक ये सूट टाई में हो, गधे को भी सूट और टाई पहनाया जा सकता है, कोई मसला नहीं है, अब पहना दे वो भी। इंसान अपनी हरकतों से पता चलता है कि ये गधा है या इंसान है। और किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है, लड़का मुंह धो रहा हो ना, समझ लो घर से बाहर जा रहा है। लड़की मुंह धो रही हो, समझ लो बाहर जाने का इसका कोई प्रोग्राम। मेकअप उतार रही है ना मुंह धो के, तो इतना चलो मेकअप उनका पर्सनल मामला है, लेकिन यार उनको तो जाने दो ना। लेकिन वो खवातीन का अलग रखो ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि तैयार होके ना जाए शादियों में। मैं कह रही क्यों मर्दों में के बीच में क्यों घुस रही हो? कितनी बेगैरती है, कितनी बेशर्मी है। मौलवियों को बुरा भला कहो, ये ब्रॉड माइंडेड है, ये कहते बीच में तंबू लगाओ, ये पुराने जमाने के लोग। अंग्रेजों के यहाँ तंबू नाम की कोई चीज है ही नहीं। तभी वो चांद पे पहुंच गया, कहते इधर बीच में तंबू आना चाहिए, लेडीज इधर होनी चाहिए, जेंट्स इधर होने चाहिए। क्या हो गया, इसने उसको आंख पटक्का कर लिया, उसने उसको देख लिया थोड़ी। और तारीफें भी करे, आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आज तो पुराने जमाने को उठा के चपेट लगाती थी, क्योंकि गैरत वैरत खत्म हो गई, तो आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू। और आंटी आप भी माशाल्लाह। आंटी तो बोल नहीं देना कभी गलती से, शादी में पूरी तलाक हो जाएगी वहीं पे। স্কার্ট পরে স্কার্টের নিচে আন্ডার প্যান্ট না পরলে কি নামাজ? এটা প্রশ্ন হলো। হয়ে যাবে। ভিট দিয়ে গোপন অঙ্গের লোম পরিষ্কার করা যাবে কিনা? সূর্যাস্ত সূর্যোদয়ের সময়, এগুলো প্রশ্ন পড়তেই তো লজ্জা করে। সূর্যোদয়ের সময় সহবাস করা যাবে কি? সব সময় করা যাবে, যখন মন চায়। আমার স্বামী প্রবাসী, ভিডিও কলে স্বামী না, আস্তাগফিরুল্লাহ। ইয়া করবেন কেন? এটা কেন রুচিশীল কথা নাকি? एक साहब किसी बेवा से शादी कर रहे थे, उस बेवा का कोई बेचारी का पूछने वाला नहीं था। ऐसी बेवाएं बहुत हैं मार्केट में। वो दूसरी शादी करके उसका घर बसा रहे, और उस बेवा का बयान यह था कि अगर ये मुझसे शादी ना करता मैं लाजमी जिना में मुब्तला हो जाती। दफ्तर में हर आदमी टेढ़ी नजरों से देख रहा है उसको कि यार इसका शौहर तो मर गया, जवान लड़की बेवा हो गई थी। तो मेरे पास आए, मैं तो उल्टे उल्टे मशवरे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह देता रहता हूं। मैंने कहा यार आपको अगर पसंद है तो आप शादी कर लो। उसने कहा मेरी बीवी खुदकुशी की धमकी दे रही है। मैंने कहा मरने दो उसको, आपको गुनाह
बोलो, उसके हुकूक में कोई कोताही ना करो, आप हुकूक में कोताही ना करो, आप बोलो भाई इससे शादी करके मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, तुम्हारा खर्चा पानी कम नहीं होगा, पूरा इंसाफ होगा, बल्कि मैंने कहा और ज्यादा प्रोटोकॉल दो थोड़ा सा उसको। लेकिन एक शरीयत का हुक्म है, एक औरत मर रही है, जिना में मुब्तला हो रही है, कोई उसका रिश्ता नहीं आ रहा, अब एक बात तय हो गई है, आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया है, अलग घर भी दे सकते हो, फिर भी अगर कोई खुदकुशी करके मरता है तो गवर्नमेंट की तरफ से मरने पर कोई पाबंदी नहीं है, इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए। तो ये मैंने दूसरी शादी की मिसाल जो दी है ना, ये बात समझा, और फुकहा ने ये लिखा है, असल में मैं उसूल समझाना चाह रहा हूं, दूसरी शादी तो बहुत दफा समझा चुका हूं मैं, असल में उसूल कि आप अगर सही करने जा रहे हैं और वो सही करना बहुत जरूरी भी है, या तो है ना बहुत जरूरी ना हो, फिर ठीक है लोगों की रियायत करो, हर फर्ज का, हर अच्छा काम करने का नहीं होता, बाज दफा अच्छे काम में नुकसान ज्यादा होता है, तो ऐसे मौके पे मशवरा ये दिया जाता है कि यार कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, थोड़ा बहुत सवाब है ना, तो सवाब में नुकसान भी हो रहा है, तो छोड़ो इतना काम करो। बाप को तो चाहिए कि तुम खुद करो भाई, उस बेटी को बोलो कि बेटा तुम्हें जो पसंद हो बताओ, मैं तुम्हारी शादी करता हूं। और वो जो उल्लू का पट्टा है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जिसके बाप उसको रोक रहा है, उसको चाहिए तू अपने बाप से पूछता क्यों है यार? तू लड़की का तो वली उसका बाप होता है, लड़के का थोड़ी कोई वली होता है। तू यार बोल अब्बा से, अब्बा मैंने गर्लफ्रेंड बनाने से पहले मैं किसी से नहीं पूछता, तो आप, मैं शादी कर रहा हूं, आप मुझे अप्रिशिएट करें, नहीं कर सकते तो मेरे लिए रुकावट ना बने आप। वो सारे काम बाप की मर्जी के बगैर कर रहा होता है, निकाह के वक्त उसको पता नहीं मौत आती है, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तू मर्द बन यार, तू आदमी बन, तू पजामा क्यों बनता है तू? तो मर्द को चाहिए एक्शन ले, अब्बा से बोले भाई अब्बा मैं आपका एहतराम करता हूं, मेरी शादी करा दो, नहीं कराते तो आप बोले ठीक है मैं करके बता दूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, माँ बाप का ये हक है कि अगर वो बेटे को कहें कि बीवी को छोड़ दो, तो बेटे पर लाजिम है कि वो उनके कहने पर बीवी को बोलो छोड़ दे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी केस आया, तो आपने फरमाया बाप की इताअत करो, बाप अगर कह रहा है तो बीवी को छोड़ दो। आप रमज़ान में जब कोई नेकी करते हैं तो पूरे साल की नेकी एक तरफ और रमज़ान की नेकी एक तरफ, कई गुना अजर उसका बढ़ जाता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे रमज़ान को भी एक जैसा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशरे को पिछले 2 अशरों पे अल्लाह ने फजीलत दी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्द मी इज़ारहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़द्र। क़द्र का मतलब मर्तबे वाली, क़द्र व मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। जैसे आप देखते हैं कि तो ये खुशी का दिन है, जब ईद आती है तो क्या करना है? खुशी मनानी। बस इस पे शुक्र अदा करो, अल्लाह तूने हमसे ये जिम्मेदारी पूरी करवा ली। हम जैसे नालायकों से पले गिरे पड़े सोते पोस्तियों की तरह ही गुजर गया। फर्ज रोजा तो अदा हो गया ना, फर्ज रोजा अदा हो गया। हमारी नजर में ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इस जमाने में रोजा खोर भी पैदा हो रहे हैं जो रोजा नहीं रखते, कहते रखा नहीं जाता। तो हमें तो भाई ईद के दिन खुशी होती है उस पे, इसलिए ये टोपी ड्रामे नहीं किया करो, रमजान जा रहा है हाय बड़ा गम है, हाय बड़ा गम है, ये टोपी ड्रामे नहीं किया करो। बोलो भाई अल्लाह का फजल हो गया, बस अल्लाह ने हमसे रखवा लिया नालायकों से। कोई गलती कोताही हो गई है तो तौबा करो अल्लाह से, आइंदा आज़म करो, बाकी ईद पे खुशी मनाओ कि अल्लाह ने हमें दोबारा खाने पीने की छुट्टी दे दी, ठीक है ना, ये खुशी मनानी चाहिए। तो अगर फिल्म किसी हिंदू ने देखनी है तो पी के देख लो, 100% यकीन आ जाएगा। और पी के देखो बगैर पिए, ऐसा ना हो पी के देख रहे हैं बैठ के, यार वो फिल्म देख रहे हैं पी के, फिर थोड़ी समझ में आएगी। तो बगैर पी के देख लो, सही है ना। बात चीजें फिल्में सिखा देती हैं। अरे भैया इसमें बैटरी नहीं पड़ती तो काम काहे नहीं कर रहा है? मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टिव पीस नहीं बनाते भाई हम। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बनावा तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? धंधा बंद करवाएगा क्या? हर जगह 4 शादियों का मसला ही बयान किया करो, बाकी मसाइल तेरे बस की बात नहीं है। एक स्कॉलर है, नाम नहीं लूंगा, आजकल मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना बोझ निकालने का मौका मिल गया तो मुझे कहते हैं इसको शादियों के अलावा कुछ भी नहीं आता। कभी आप मिलें इंशाल्लाह, हम आपसे कुछ सवालात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें शादियों के अलावा और क्या क्या आता है। कभी आप आ जाएं या ऑनलाइन आ जाएं यूट्यूब पे, तो आपने जो टेलीविजन के प्रोग्रामों में गलतियां की हैं मैं वो हाईलाइट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप हदीसों का तर्जुमा कैसे गलत करते हो, कैसे लोगों को आप दीन के नाम पे
गुमराह करते हो। तो कभी आ जाओ खुशबू लगा के, तो फिर पता चल जाएगा कि हमें शादियों के अलावा भी कुछ और आता है। बाकी शादियों पे हम बयान इसलिए नहीं करते कि हमें आती शादियां ही हैं, इसलिए करते हैं कि सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। सोसाइटी की जरूरत रफुल के झगड़े नहीं है, टांगे चौड़ी करना, पतली करना, हाथ यहाँ बांधना यहाँ बांधना, ये सोसाइटी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को फोकस नहीं करते ज्यादा। शादियां बहुत बड़ा मसला है, बेहयाई फैल रही है। तो भाई साहब कभी आप आओ, हमसे कुछ टॉपिक पे बातचीत करो, तो फिर हम इंशाल्लाह बताएंगे कि हम नहीं कह रहे हैं बहुत बड़े आलिम हैं, लेकिन आप हमसे भी ज्यादा फारिग निकलो। गाय को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि माँ के दूध में जो गुण होता है सेम वही गुण गाय माता के दूध में होता है। जब गाय आपकी माँ है तो गाय का मियाँ आपका बाप क्यों नहीं है? गाय के जो दूध उतरा है वो तो बैल की वजह से उतरा है ना, बच्चा हुआ है तो वो तो क्रॉस हुआ है, तो उसकी बेस पर मखलूक को सजदा मत करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, उस जात को सजदा करो जिसने इनको। अगर गाय में कोई क्वालिटी है तो ये गाय की खासियत नहीं, तो बनाने वाले का कमाल है। तो बनाने वाले को फोकस करो, बनी हुई चीजों को क्यों फोकस कर रहे हो भाई? बनाने वाले का कमाल है। देखो आपको कोई मोबाइल गिफ्ट करता है तो आप मोबाइल का शुक्रिया अदा करते हो, ये जिसने गिफ्ट किया उसको थैंक यू कहते हो? क्या हो गया? अबे भाई जो आपको गिफ्ट करेगा तो आप उसका शुक्रिया अदा करोगे ना ये कि उस गिफ्ट का शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो गाय तो अल्लाह ने हमें दी है, तो गाय का थोड़ी शुक्रिया अदा करना है। किसका अदा करना है? अल्लाह का अदा करना है। अल्लाह का शुक्र है हम गौस के मांगने वाले हैं, हम ख्वाजा से मांगने वाले हैं, मगर अल्लाह की लानत तुझ पर है, तू गैरों से मांगने वाला। फरमाते क़यामत के रोज 900 तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा। गौसे आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। कुरान तो 2 और 2 4 की तरह कहता है, मैंने किसी को भी किसी भी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए। सारे इख्तियारात किसके पास हैं? मेरे पास। लिहाजा ना पैगंबर से मांगो, ना फरिश्तों से मांगो, ना बुजुर्गों से मांगो, ना कब्रों से मांगो। देने वाला कौन है? मैं। ये अकीदा 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे हटेंगे तो एक जंगल है। फिर वो कहते हैं जब पुलिस से मदद मांगना जायज है तो पैगंबर से मांगना जायज क्यों नहीं? भाई पुलिस से मदद और तरह की मांगी जाती है, वो असबाब की दुनिया में मदद है। वो हम असबाब से हटके मदद की बात कर रहे हैं। असबाब वाली मदद तो मैं आपसे भी पानी लेकर आओ, ये करो वो करो, ये तो असबाब से हटके ऐसी मदद जिसकी लॉजिक नहीं है। अल्लाह कुछ करने में किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। वो जिस हद तक मुमकिन हो सोशल मीडिया पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वो जब देखते हैं ना कि सारे चुप करके खामोश बैठे हुए हैं, वो समझते हैं कि मुसलमानों में गैरत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? खत्म। जितना पुरअमन एहतजाज हो सकता है करें। मैं पुरअमन इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ पास जज्बाती लोग कहते हैं कि मौलवी साहब ये पुरअमन से काबू में आने वाले नहीं है। देखो अगर आप बदअमनी फैलाओगे ना, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। लेकिन साइड इफेक्ट क्या है? ज्यादा। इससे होगा क्या? गैर मुस्लिम लोग कहते हैं कि तुम जब जज्बाती हो, तुम लोग जब ये कुछ कर रहे हो, तो हम फिर अगला स्टेप इससे भी बड़ा करेंगे। इस काम को जो सही माना में कंट्रोल कर सकते हैं ना, मुस्लिम हुक्मरान कर सकते हैं। दुनिया के जब सारे इस्लामी कंट्रीज के सरबराहान स्वीडन पे दबाव डालेंगे, स्वीडन की गवर्नमेंट इस अमल से रोकने के लिए कानून साजी, तो आप पर भी लाजिम है कि आप अपने हुक्मरानों पे दबाव डालें। आवाम जब अपने तौर पे तोड़ फोड़ करती है, उसके फायदे कम होते हैं, साइड इफेक्ट उसके बहुत खतरनाक होते हैं। देखो इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म शुरू हुआ, सऊदी अरब ने दबाव डाला तो जुल्म में कमी आई। फिर जब सऊदी अरब की तरफ से दबाव कम होता है, फिर जुल्म बढ़ना शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट लेवल पे जो काम होता है वो बड़ा। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाएं। फरमाते क़यामत के रोज 900 तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिल जन्नत ना करवा। गौसे आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। कुरान तो 2 और 2 4 की तरह कहता है, मैंने किसी को भी किसी भी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए। सारे इख्तियारात किसके पास हैं? मेरे पास। लिहाजा ना पैगंबर से मांगो, ना फरिश्तों से मांगो, ना बुजुर्गों से मांगो, ना कब्रों से मांगो। देने वाला कौन है? मैं। ये अकीदा 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे हटेंगे तो एक जंगल है। फिर वो कहते हैं जब पुलिस से मदद मांगना जायज है तो पैगंबर से मांगना जायज क्यों नहीं? भाई पुलिस से मदद और तरह की मांगी जाती है, वो असबाब की दुनिया में मदद है। वो हम असबाब से हटके मदद की बात कर रहे हैं। असबाब वाली मदद तो मैं आपसे भी पानी लेकर आओ, ये करो वो करो, ये तो असबाब से हटके ऐसी मदद जिसकी लॉजिक नहीं है। अल्लाह कुछ करने में किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। वो गौसे आजम का मतलब है सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे बड़ी मदद करने वाला। खुदा की खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। गौसपाक कहते हैं अगर मेरे मानने वाले को, मेरे मुरीद को ठोकर लगे और वो गिरने लगता है, मैं उसको थाम लेता हूँ। फरमाते मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे जैसे आसमान का साया जमीन पर। कुरान तो 2 और 2 4 की तरह कहता है, मैंने किसी को भी किसी भी किस्म के इख्तियारात नहीं दिए। सारे इख्तियारात किसके पास हैं? मेरे पास। लिहाजा ना पैगंबर से मांगो, ना फरिश्तों से मांगो, ना बुजुर्गों से मांगो, ना कब्रों से मांगो। देने वाला कौन है? मैं। ये अकीदा 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है, इसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे हटेंगे तो एक जंगल है। फिर वो कहते हैं जब पुलिस से मदद मांगना जायज है तो पैगंबर से मांगना जायज क्यों नहीं?
भाई पुलिस से मदद और तरह की मांगी जाती है, वो असबाब की दुनिया में मदद है, वो हम असबाब से हट के मदद की बात कर रहे हैं। असबाब वाली मदद तो मैं आपसे भी पानी लेकर आओ, ये करो वो करो, ये तो असबाब से हट के ऐसी मदद जिसकी लॉजिक नहीं है। अल्लाह कुछ करने में किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। वो कुछ लोग कहते हैं जनाब अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है जनाब, क्या कहते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। कुरान क्या कह रहा है, ए ईमान वालो नमाज और सबर से मदद चाहो। नमाज अल्लाह है, जवाब दीजिए ना, सबर खुदा है नहीं, तो जब नमाज और सबर से मदद मांगने का कुरान हुक्म दे रहा है तो इसका मतलब गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क नहीं हो सकता। तो अपने पीरो मुर्शिद के पहले ये देख लिया करो कि ये सुन्नत के मुताबिक है भी कि नहीं है। उनके रोने धोने पर उनकी बार बार बस ये बातें कि इश्क मुस्तफ़ा और नबी की याद और पहले अकीदा पूछो, हजरत आप क्या अकीदा क्या है आपका, समझ में नहीं आ रही बात। और साफ सुथरा अकीदा पहले वो बयान करवाओ अपने शेख साहब से, जो भी पीरो मुर्शिद बनाए रहे हो ना, जिसको हजरत जी बहुत पहुंचे हुए, उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछो। तो अकीदत की आंखें अंधी आंखों से मत देखो मेरे भाई, अकायद पे कंप्रोमाइज मत करो। देखो इस्लाम में सबसे पहले तौहीद है, सबसे पहले क्या है, अमाल में नमाज है। कोई बुजुर्ग नमाज ही नहीं पढ़ रहा तो उससे पूछो भाई वजह बताओ क्यों नहीं